أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 40واں رکوع. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سجا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر سرو سکشم ہے. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا. تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی. اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے اور یا چکیں. اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے. تفسیر سورہ بقرہ 40واں رکوع. برائی. انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں. ایک وسوسے کے طور پر، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی طاقت میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا. ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں. اس پر کوئی پکڑ نہیں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان پر پکڑ نہیں کرتا جب تک وہ عمل میں نہ لائے جائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں. یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں. دوسرے وہ خیالات جن کو منشیہ اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا ارادہ کرتا ہے.
कुफ्र का इरादा करना कुफ्र है और गुनाह का इरादा करके अगर आदमी उस पर साबित रहे और उसका इरादा रखे लेकिन उस गुनाह को अमल में लाने के साधन उसको उपलब्ध न हो और वह मजबूरन उसको न कर सके तो उससे हिसाब लिया जाएगा। शेख अबू मंसूर मातुरीदी और शमसुल अम्मा हलवाई इसी तरफ गए हैं और उनकी दलील आयत इन्नल लजीना युहिब्बूना अन तशियुल फाहिश्तो और हजरत आयशा की हदीस जिसका मजमून यह है कि बंदा जिस गुनाह का इरादा करता है अगर वह अमल में न आए जब भी उस पर पकड़ की जाती है। अगर बंदे ने किसी गुनाह का इरादा किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ और तौबह की तो अल्लाह उसे माफ फरमाएगा। अपने फजल से ईमान वालों को अपने इंसाफ से। जुजाज ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने इस सूरत में नमाज, ज़कात, रोजे, हज की फर्जियत और तलाक, ईला, हैज और जिहाद के अहकाम और नबियों के किस्से बयान फरमाए तो सूरत के आखिर में यह जिक्र फरमाया कि नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों ने इस तमाम की तस्दीक फरमाई और कुरान और उसके सारे कानून और अहकाम अल्लाह की तरफ से उतरने की तस्दीक की। ये उसूल और ईमान की जरूरतों के 4 दर्जे हैं। पहला, अल्लाह पर ईमान लाना। यह इस तरह की अकीदा रखे और तस्दीक करे कि अल्लाह एक और केवल एक है, उसका कोई शरीक और बराबर नहीं। उसके सारे नामों और सिफात पर ईमान लाए और यकीन करे और माने कि वह जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है और उसके इल्म और कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। दूसरा, फरिश्तों पर ईमान लाना। यह इस तरह है कि यकीन करे और माने कि वो मौजूद हैं, मासूम हैं, पाक हैं, अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अहकाम और पैगाम लाने वाले हैं। तीसरा, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, इस तरह की जो किताबें अल्लाह ताला ने उतारी और अपने रसूलों पर वही के जरिए भेजी, बेशक बेशुबह सब सच्ची और अल्लाह की तरफ से हैं और कुरान करीम तब्दील, काट छांट, रद्दो बदल से महफूज है और अल्लाह के आदेशों और उसके रहस्यों पर आधारित है। चौथा, रसूलों पर ईमान लाना, इस तरह की ईमान लाए कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं जिन्हें उसने अपने बंदों की तरफ भेजा, उसकी वही के अमीन है, गुनाहों से पाक, मासूम हैं, सारी सृष्टि से अफजल हैं। उनमें कुछ नबी कुछ नबियों से अफजल हैं, जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों ने किया कि कुछ पर ईमान लाए और कुछ का इनकार किया। तेरे हुक्म और इरशाद को, यानी हर जान को नेक कर्म का इनाम और सवाब मिलेगा और बुरे कर्मों का अजाब होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को दुआ मांगने का तरीका बताया कि वो इस तरह अपने परवरदिगार से अर्ज करें और गलती या भूल चूक से तेरे किसी आदेश के पालन से महरूम रहें। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। मोहतरम अजीज दोस्तों, सूरह अल बकरह का तर्जुमा तफसीर मुकम्मल हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।